tell me that, okay, this is the idea. I don't care. Probably some other people would. And we call them shepherd, the people who do that. They are the CEOs of the existing companies who ran all this for 20 years, for 15 years. I'm not trying to predict a future, but I've been through. This is 2 + 2, 4. So if you're going to get to 4, I've been through. I know. And many people I've heard saying that my mentor or my teacher told me that this is what's going to happen in the next 5 years. And that's exactly what happened. Exactly this is what happened. And some of the people here. So why not have this greenhouse in which this person is always there? And that person also has a stake in it. So this person is saying to you that, okay, let me sit on a driving seat for a while. Let me sit on a driving seat for a while. So let's say you come up with a venture. This is your startup. You say, here's the 30%. Give me that much money. You prove it to him that this is what money you need for the 30%. So, and then in return he says, I'll be the CEO for whatever time up till the point when you are ready for it. And then he trains you. You are the co-founder. You keep staying the co-founder. You keep claiming the title of co-founder up till the point when one of you is ready to assume the responsibility to become a CEO of that company. And then in the end, that person only would be left with the equity. So that's the model we came up with. We said, there is going to be shepherd, and those shepherd is going to be taking care of it in the greenhouse. For instance, I have a company. It's a software development company or web development, and we do tons of stuff like whichever IT guys do. If you are coming for like 10 lakh ke liye aap mere paas aa rahe hain, and you're showing it to me that you need $1 million, but that $1 million, where are you going to spend it? Show it to me. Do those 8 steps before you looking for the money. And for that, we have fast track. I'll come to that. But learn about this. What is this cycle? What steps you take at what time? What is 1? What is 2? What is 3? What is 4? Don't just go to the money bit. Because the moment you go to the money bit, your mind goes blank. Because until you have this, you're not going to do anything else. Reality is, if you do 8 steps, I guarantee you, I'll get you the money for that. But show me that you have done those 8 steps. Don't come to me like thinking, okay, can I have the money? Okay, I'm going to ask you, what do you need the money for? And you have no idea what you need the money for whatsoever. Is that true or false? So prepare yourself for those answers. And once you come with those answers, that have you done the financial forecast? Have you done the research? Is your market research done on the basis of some surveys? All those kind of things, I don't have to repeat those. So you come and then I'll step down and you carry on with the company. Now imagine how many jobs you'll create that. Our plan is to launch about 1,500 startups that way. And about 500 shepherds will be available. Inshallah, in a couple of months, Jumpstart website is going to be available as a matchmaking website. You list your startups, you'll have the shepherds, you choose them, they choose you, and they fight each other, by the way. That I want this company, I want that startup. And this model, I think, in my limited mind, would work in this model because we'll be holding hands. But it's not going to be spoon feeding. That literally, you need this, okay, here it is. You need that, here it is. I'll give you an example. Let's say you need 1 million, and then 1 million you allocated for a place, a phone, a computer, accountant, customer services, project manager. Okay, come to me. I'll give you for free. You don't need that million. Because I'll give you the accountant, I'll give you the customer services, I'll give you the place to sit, I'll give you the computer. Here goes your money need. Now tell me what you need the money for. Then you'll say, how I'm going to survive. I'll say, okay, you're a fresh graduate, just starting it.
What's the salary for that? And then you will say 10,000, 15,000. What is it for me? For me, is an office by salary. So what is it for me? I'll pay you to build your startup. I'll pay you a salary to build your startup. And we did this model. We have done this model. We've been running it for the last 6-8 months. And this is what I ask for you to consider. Only come with the true intention that, okay, this is what you want to do, and the reason for it. And the real reason for it is not you or the money. It's about the country we all love. And the reason I told you, or the way we can fix it, is through this. Although I'm kind of taking too much time. So whoever is ready to actually get on this train have got the time now. They can register themselves. And it's not just that. We'll train you as well. So you have a proper entrepreneurial training path. And then we'll take you to the leadership camps where we're going to create a leadership qualities within you. So you're getting ready for that challenging job you're going to be assuming in 3 years' time. So there is a proper path set for this. And I'll end it this. But I want to show you one example. Actually, a couple. Can we have Mubashir? He's, by the way, just नवी पास है ये लड़का. 9 जमाते पास है की हुई हैं और गुजरांवाला से बिलोंग करता है. इनके वालिद साहब का 1-2 एकड़ ज़मीन थी. And then हमने एक वेबसाइट लॉन्च की कारोबार करो के नाम से. It's about a couple of years ago. He approached us and he said, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है? कि जी हम बैंक तो नहीं है, हम कौन सी हम किस बात की इन्वेस्टमेंट करते हैं? He'll tell you the rest of the story. अस्सलाम वालेकुम. मैं ये जो अपना sorry, it's the first presentation in my life. अल हलाल फार्म के सक्सेस स्टोरी के हवाले से शेयर करने के पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ. मैं बिलोंग करता हूँ गुजरांवाला के से 10 किलोमीटर ईस्ट साइड पे एक गांव है नोइन के संदवा. वहाँ से मेरे जो फादर हैं वो फार्मर थे. आई एम 3rd जनरेशन इन फार्मर. तो तब से फिर वालिद साहब ने पोल्ट्री का बिज़नेस स्टार्ट किया. तो हम 2007 तक हम पोल्ट्री के फार्मिंग में थे. तो जब ये बर्ड फ्लू का क्राइसिस आया तो हमें काफ़ी लॉस हुआ उसमें. तो फिर हमने पोल्ट्री को छोड़ के तो हम एक स्मॉल डेयरी का सेटअप स्टार्ट किया. उसमें 2013 तक हम ऐसे ही चलते रहे. तो मेरे जहन में ख्याल आता था, और मैं आपको अपनी क्वालिफिकेशन का बता दूं कि जब ये फार्मिंग में थे वाले साहब, तो जब मैंने अभी 9th में था तो कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से वाले साहब से जो है वो फार्मिंग का बिजनेस वो नहीं थी कवर हो रहा. तो फिर मुझे वाले साहब के साथ आना पड़ा. जब मैं उनके साथ आ गया तो फिर फार्मिंग का जो स्टडी मैंने जो है उसे क्विट कर लिया और मैं फिर प्रॉपर फार्मिंग में आ गया. तो बर्ड फ्लू क्राइसिस के बाद फार्मिंग का तो हमसे पोल्ट्री का ख़त्म हो गया, वाइंड अप कर दिया उसका. फिर हमने एक स्मॉल सा डेयरी का सेटअप स्टार्ट किया. जब मैंने डेयरी का सेटअप स्टार्ट किया वाले साहब के साथ, तो कुछ लॉस पोल्ट्री में ज़्यादा हो गया. तो हम उसको ज़्यादा अच्छे लेवल से लाइक मॉडर्न डेयरी के उस पर ना कर सके. तो फिर मैं सोचता था कि अगर मैं ऐसे ही इसी सर्कल में घूमता रहा तो मैं क्या करूँगा. लाइक जैसे और अप टू 67% टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान बिलोंग टू रूरल एरिया. तो कि मैं भी वहीं पे बस वो जो 2 भैंसें हैं उनको बस चारा काट के डाल दिया, ये कर लिया वो कर लिया, सिंपल. तो मैंने सोचा कि कुछ इससे बेहतर करना चाहिए. तो तब मैंने फिर गूगल पे इंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से मैं देखता रहा.
तो मुझे कारोबार करो के हवाले से एक वेबसाइट आई, तो मैंने उस पर ईमेल किया। जब मैंने उस पर ईमेल किया तो मुझे फ़ारूक साहब ने जो हैं वो उन्होंने मुझे उसका रिप्लाई दिया। तो उसके बाद मैंने हमारी बातचीत हुई, मैंने उनसे अपना आइडिया शेयर किया। कि सर मैं कुछ करना चाह रहा हूँ फार्मिंग में, तो मैं अब ज़्यादा डेयरी के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, तो मैंने उनसे अपना गोट फार्मिंग का एक आइडिया शेयर किया। जब तो हमारी जो है उसके बाद गोट फार्मिंग पे उनके साथ मेरी फिर उसके बाद खुरम साहब से मेरी स्काइप पे बात हुई कि हाँ जी हम कैसे इसको करना चाहेंगे। तो जब मैंने ये इनसे आइडिया शेयर किया, फिर उसके बाद ये एग्री हुए कि ठीक है हम आपके साथ काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मैंने इनको एक फॉर कॉस्ट जो है वो रिपोर्ट मैंने, इन्होंने कहा कि कुछ हमें बताएं फिजिबिलिटी के हवाले से, तो मैंने इनको ये रिपोर्ट एक सेंड की, जिसमें मैंने इनको कि हम स्टार्ट जो है हम इनिशियल कैपिटल जो हमारा होगा वो हम 4 लाख से स्टार्ट करेंगे इन गोट हर्ड्स, फीमेल गोट्स के लिए, और उसमें हमारा टोटल ऑपरेटिंग कास्ट जो होगा वो तकरीबन राउंड अबाउट 3 लाख के होगा। तो उसके बाद ये करने के बाद फिर मैंने इनको अपना ब्रीड प्लान दिया कि भाई हम कैसे इसको करेंगे और ये कैसे होगा। तो उसमें कि हमारे पास कितने हमारे पास गोट्स होंगी, फिर हमारे पास बेबीज़ कैसे आएंगे, उसमें मोर्टेलिटी रेट क्या है, रिस्क फैक्टर क्या हैं। उसके बाद ये रेवेन्यू रिपोर्ट है कि जिसमें हमारा रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। हमारा जो प्लान था कि हम जो है मीट पर्पस के लिए इसको करेंगे कि आफ्टर एवरी 8 मंथ हम इसको सोल्ड कर दिया करेंगे टू ए बुचर और कैटल मार्केट। तो ये मैं उसके बाद ये हमें जो है आफ्टर 2 इयर्स हमें जो प्रॉफिट हो रही थी जो मेरे एक्सपेरिमेंट के मुताबिक वो थी 8 लाख समथिंग, जिसमें हमारा आफ्टर सेल स्टॉक जो पेरेंट स्टॉक था फीमेल गोट्स का ये हमारा बाकी बच जाता है, ये 5 लाख का, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ये सिंपल मैं ज़रा आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ कि ऐसे हमने किया। उसके बाद हमारी एग्रीमेंट एंड टर्म कंडीशन फाइनल हुई। मेरा ख्याल था कि सर हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस करके हम 50% बाद में कर लेंगे प्रॉफिट को, कि आप इन्वेस्ट करें, मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, लाइक मेरे पास है थोड़ी सी लैंड है और मुझे थोड़ा सा इसका एक्सपीरियंस है, हम उसके बाद 50-50 कर लेंगे। तो जब मेरी सर हुरम से बात हुई, सर हुरम ने कहा कि हम तो भाई कोई ऐसा तो नहीं करेंगे कि हम ये मीन्स के 50-50% लेके प्रॉफिट या जो भी हो उस साइड पे हो जाएं। इन्होंने कहा कि हम इसको दोबारा से री इन्वेस्ट करेंगे। और जो मुझे सबसे बेहतर बात लगी ये एक स्टार्टअप लॉन्च करने से पहले गोट फार्म हलाल फार्म के हवाले से, तो वो ये था कि सर फ़ारूक ने जो एक टर्म्स जो मुझे बताई कि हम इस कारोबार में सूदी लेन देन नहीं करेंगे, वो मुझे बात सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट की कि जो बंदा अपने साथ इतना सिंसियर है वो इंशाल्लाह इन फ्यूचर मेरे साथ भी और हमारे बिजनेस के साथ भी बेहतर होगा। तो उसकी वजह से भी मैंने माशाल्लाह इनके साथ जो है वो ये एग्रीमेंट टर्म कंडीशन हमारा फाइनल हो गया। उसके बाद हमने गोट फार्म स्टार्ट किया। ये हमने इनिशियल जो इस पे इन्वेस्टमेंट की वो 4 लाख समथिंग की, जिससे हमने बाई की 33 फीमेल गोट्स, और उसमें हमने एक मेल भी परचेज किया लाइक ब्रीडर उस मेल गोट। तो जब हमने ये करके हमारा ये मेरा करंट जो है स्टेटस है, ये गोट्स हमारे वहाँ पे हैं। तो उसके बाद ये जो अभी माशाल्लाह करंट स्टेटस है विद इन लाइक 5 मंथ, तो हमारे पास माशाल्लाह 55 गोट्स हर्ड्स हैं इंक्लूडेड किड्स। तो उसमें और फिर ये सबसे जो बड़ी बात थी वो ये थी कि अगर मैं पिंड में वैसे ही रहता, मुझे क्या पता था कि भाई ये इसका इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है, इसका चेक बैलेंस क्या है, फीडिंग को मोर्टेलिटी रेट को कैसे मैं आपको ये आपके इल्म में एक बात लाना चाहूँगा कि पाकिस्तान में एट द मोमेंट अप टू 70% मोर्टेलिटी रेट है इन गोट्स किड्स एंड शीप किड्स, ठीक है, और ये बहुत हाई है देन द वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है। तो ये हम माशाल्लाह इन्होंने मुझे एक लाइक आप तो जानते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है डेवलपर्स हैं, तो उन्होंने मुझे एक वो सॉफ्टवेयर बना के दिया कि आप भाई इसमें इन्वेंट्री करो, इसका ऐसे चेक बैलेंस करो, तो ये मैं कर रहा हूँ। उसके बाद ट्रेडिशनल फार्म,
गोट्स के साथ साथ हम अपने जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हम एक डेयरी के सेटअप में थे, स्मॉल डेयरी सेटअप, ठीक है जी। तो ट्रेडिशनल फार्म लाइक एट द मोमेंट अप टू 35 मिलियन स्मॉल फैमिली फार्म लाइक वर्किंग विद ट्रेडिशनल फार्मिंग इन पाकिस्तान। तो जिनके पास सिर्फ दो से तीन कोज बफलोज हैं, जो या 2 से 3 जो अपने बैक यार्ड में उनको रख के वो उससे जो है इनकम जनरेट कर रहे हैं अप टू 20 to 30%। तो ये जब मैं इनके साथ आया, इन्होंने देखा कि आपका यार ये सेटअप, आपको इसमें क्या प्रॉफिट है, और वैसे भी प्रॉफिट नहीं है अगर इसको ट्रेडिशनल फार्मिंग में ही किया जाए। वैसे एग्रीकल्चर हम ये तो बड़े शौक से कहते हैं कि भाई वी आर द फर्स्ट वन प्रोड्यूसर इन द लाइक चेक पास गोट मीट, सॉरी वैसे उसमें हम गोट मीट में थर्ड प्रोड्यूसर हैं, मैं आपको बात बता रहा हूँ, इन द फोर्थ मिल्क प्रोड्यूसर इन प्रोड्यूसर इन द मिल्क ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो लेकिन वो क्या है, हम ये नहीं सोचते कि यार हमारे पीछे इस सारे सेटअप के पीछे जो है मैन पावर कितनी यूज हो रही है, कितने लोगों का पसीना, खून पसीना इसके पीछे हो रहा है। तो हम सिर्फ ये सोचते हैं हाँ जी हम जी बड़े वो जी मीन प्राउड से हम बताते हैं कि हम जी इतना दूध जो हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, ये नहीं हम देखते कि हमारे उसके पीछे एनिमल्स की जो है पॉपुलेशन वो कितनी है, जो रूरल एरिया के लोग हैं वो कितने इन्वॉल्व हैं, वो बेचारे जो है क्या कर रहे हैं, ठीक है। हम ये सिर्फ ये प्राउड से हमारे जो है गवर्नमेंट ये सारे बताती हैं ऑफिशियल कि हम जी 4th मिल्क प्रोड्यूसर हैं इन द वर्ल्ड, ठीक है जी। तो फिर मैंने जब इनके साथ किया तो फिर इन्होंने कहा यार आप एक मॉडर्न डेयरी फार्म क्यों नहीं बनाते। मैंने कहा ठीक है सर इंशाल्लाह बना लेते हैं। तो उस हवाले से हमने फिर ये एक मॉडर्न जो है लाइक मैम जहारा जफर खान साहब को तो जानते होंगे सोफिजर से, तो उनका भी एक बड़ा अच्छा फार्म है जैकी फार्म के नाम से, तो वो मैं उसको विजिट भी किया हुआ मैंने। तो ये फिर हमने ये वाला फार्म बनाया, ठीक है जी, ये तकरीबन कोई 4-5 महीने पहले। फिर हमने ये फिर अभी ये करंट स्टेटस है माशाल्लाह, ये फिर हमने इसको कन्वर्ट किया इनटू मॉडर्न डेयरी फार्मिंग, ठीक है। तो ये अभी हमारे वहाँ पे एनिमल्स हैं और भी हम इसमें जो है रिलैक्सेशन लेके आ रहे हैं कि लेबर इसमें कम से कम इन्वॉल्व हो। तो उसके बाद फिर मैंने देखा कि भाई अभी तब हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम ट्रैक्टर बाई करते, तो हमने ये किया, मैंने कहा सर ये हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसमें कि हम लैंड प्रिपरेशन हेल्पर्स लाइक ट्रैक्टर ही है और भी बहुत ज़्यादा इससे हम काम ले सकते हैं इन फार्मिंग बिजनेस। तो फिर हमने माशाल्लाह ये ट्रैक्टर अभी ये लास्ट मंथ हमने लिया है तो यूज़, लेकिन ये हमने माशाल्लाह ये बेहतर है हमारे लिए वहाँ पे। तो उसके बाद आजकल आपको सबको ही पता है कि एनर्जी क्राइसिस कितने हैं, तो फिर सर ने कहा कि आप यार वो वहाँ पे बायोगैस का क्यों नहीं अरेंजमेंट करते। तो ये माशाल्लाह मैंने फिर 7 क्यूबिक मीटर का जो एक बायोगैस प्लांट लगाया है, जिससे हम माशाल्लाह वहाँ पे जो है अपना वो कर रहे हैं कि इससे हम फिलहाल तो अभी हमारा वैसे प्लान तो है इस पे जनरेटर चलाने का और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, लेकिन अभी हम फिलहाल हम इस पे वो वैसे चूल्हा जला रहे हैं क्योंकि ये हमारे फार्म पे है। तो वैसे इसका ये जो बताते हैं कि वो ऑफिशियल जो इससे रिलेटेड हैं कि आप इससे जो है वो 3 टाइम का खाना जो इजीली बना सकते हो जितनी इससे गैस प्रोड्यूस हो रही है 3 फैमिलीज का। तो उसके बाद ये थे हमारे जो है हमारी सक्सेसफुल स्टोरीज, और हमारे जो है जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि मेरा जो प्लान था कि हम 50-50% कर लेंगे, लेकिन सर ने कहा नहीं यार 50-50% नहीं, आप इसको री इन्वेस्टमेंट करना है। तो अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इस सोलर पैनल में भी लगा रहे हैं कि हम जो है ये वैसे तो बहुत कम यूज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी इन फार्मिंग, ये बहुत अच्छी इसके लिए है एक चीज़। तो लेकिन फिर हम अब फिर भी जो यूज़ हो रही है वो भी अगर मिले तो तभी भी बेहतर है ना, अगर ना मिले फिर उसका क्या फ़ायदा। तो हम इंशाल्लाह इसको सोलर पैनल में हम इसको अब नेक्स्ट हमारी जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पे एनर्जी की उसको वहाँ पे लाएंगे। उसके बाद हमारा है कि अभी तक मॉडर्न डेयरी फार्म तो बहुत हैं, लेकिन अभी तक कैटल बीफ की फार्मिंग में हम नहीं है पाकिस्तान में कोई भी ऐसा। हम ये इसने सैयद बाबर अली ने लॉन्च किया है फार्म वो उधर कसूर में, लेकिन कोई इतना क्योंकि हमारी जो ब्रीड्स हैं कैटल्स की वो स्किनी है तो ब्यूटी लेकिन है स्किनी, तो उसकी वजह से हम वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर रहे मीट अपने कैटल से जितना वेस्टर्न कंट्रीज में या ऑस्ट्रेलिया लाइक न्यूजीलैंड कर रहे हैं। तो हमारा जो इंशाल्लाह इन फ्यूचर कि हम जो गोड से हमारा प्रोड्यूस होगी वो इनकम उससे प्रॉफिट में उसको हम री इन्वेस्ट करेंगे नेक्स्ट प्लान में। तो इंशाल्लाह ये भी हमारे फ्यूचर के प्लान्स में है।
उसके बाद हम कि पाकिस्तान में रॉ मिल्क, वैसे तो हमें कोई ये है कि पता ही नहीं कि रॉ मिल्क बेहतर है या पेस्चराइज मिल्क बेहतर है, यूएचटी बेहतर है, नहीं बेहतर है। हम कह रहे हैं चलो यार ताकत भी है ना, तो सिंपल तो पीते रहें, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह वैल्यूडेड प्रोडक्ट्स में भी आएंगे इंशाल्लाह। तो जिसमें हमारा जो है एट द मोमेंट पाकिस्तान में इसका चीज़ का इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अभी कुछ लोगों को पता चला जब ये KFC है, मैकडोनल्ड वगैरह इंट्रोड्यूस कराया, वो भी वेजिटेबल फैट से जो है चीज़ मेकिंग कर रहे हैं। वो इतना मीन्स के रियल जो है डेयरी के इंग्रेडिएंट्स का वो चीज़ नहीं होता, ठीक है। तो उसके बाद इंशाल्लाह जो हमारा फ्यूचर प्लान है जंप स्टार्ट का, और मेरा जो हमारा जो एम है अपलिफ्ट द रूरल पुअर्स, कि जो है यार अब देखेंगे लाइक यहाँ पे सारे IT से रिलेटेड लोग बैठे हुए हैं, वो ये कर रहे हैं कि IT को प्रमोट कर रहे हैं, और जो 65% जो टोटल पॉपुलेशन है पाकिस्तान, उसके लोगों को कोई नहीं देख रहा। मैं ये बहुत सोचता था कि यार उसके लिए ना कोई स्टार्टअप है, ना उसके लिए क्राउड फंडिंग है, ना कोई इंटरप्रेन्योरशिप कोई इस तरह कुछ नहीं है उसके लिए। मैं ये बहुत सोचता था। तो हमारा जो है ये कि जो फीमेल्स हैं जो गाँव में, उनके जो हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्ट्स हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, उनको इंशाल्लाह हम विद जंप स्टार्टअप इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करेंगे। और ये मैं सिंपल, हाँ जी, और मैं सिंपल ये आपको बता दूं कि अगर मैं कहता कि भाई मैं अकेला ये सारा, पहले तो मैं अकेला, आज मैं यहाँ पे आई फील प्राउड कि मैं माशाल्लाह जो कहते हैं यूथ यूथ यूथ, मैं आज उसको यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। और वो भी जो है इस्लामाबाद की, कराची की और लाहौर की यूथ को नहीं, मैं पिंड की यूथ को प्रेजेंट कर रहा हूँ। और जो है वो उससे, और उसके बाद ये है कि मैं माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जो है जिनको कोई पूछता नहीं है रूलर्स का, हाँ ठीक है, जो है हमारे ये जो है पॉलिटिशियन है ये बिलोंग टू पिंड से ही करते हैं, इसलिए कोई बन गया जिम्मेदार, वो सॉरी जगीरदार लाइक वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब लेकिन वो बड़े लेवल पे चले गए, छोटे लेवल को बेचारे को पूछते ही नहीं है पिंड में। और तो अब देखें जी, जैसे फैसल साहब ने कहा जी कि इतने बच्चे जो हैं वो जी पढ़ नहीं रहे हैं। मैं ये सोचता हूँ कि यार वो आप DHA में बैठ के, आप KFC के बर्गर खा के, ग्लोरिया जीन से कॉफी पी के, और आप क्या कर रहे हो यार पिंड में, पिंड के लोगों के लिए कहते हैं जी हम जी स्टडी के लिए यार उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम तो जनरेट करो कि वो भी प्राउड फील करे स्कूल में जाते हुए कि वो मेरे साथ वाला बच्चा 10 रुपए खा रहा है और मेरे पास वो क्या उसका ब्रेकफास्ट में कुछ खाने के लिए वो कुछ पैसा ही नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आप उसका सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करो कि हाँ भाई उसको भी, हाँ भाई वो भी गए, हाँ भाई मैं स्कूल गया था और माशाल्लाह मैं जी इनके साथ बैठा था। हाँ अब यहाँ पे कोई वो लाइक बिगन हाउस और ये जैसे रूट मिलीनियम, ये वो अब रूट मिलीनियम पिंड वाले बच्चे को तो मेरे ख्याल एडमिशन ही नहीं मिलेगा यहाँ पे ना, तो उससे जो है वो मेरा गला खुश्क हो गया। मैं थोड़ा सा हो। हाँ? तो मैं और सेकंड सर, मैं ये आप जो है पीपल्स के सामने जो बैठे मेरे सामने, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा भाई जब आप लाइक थैंक यू अब मुझे बैठ के पीना पड़ेगा, सो मैं भी ना बाद में पीऊँगा इसको भी। अच्छा जी, तो ये है कि और सबसे पहले मैं ये माशाल्लाह हो गए, देखें जी अल्लाह पाक से जब आप मांगते हैं ना कुछ, तो अल्लाह पाक आपको अच्छी लोग देते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरी जहांगीर तरीन खान के बेटे से अली तरीन से मेरी मीटिंग्स हुई, मैं यानी करता रहता था। उसके बाद मेरी इजाज़ रहीम बैंकर्स आप जानते ही हैं, वो जो अमेरिकन था उसने वहाँ पे जो शेयर्स में जो ट्रेडिंग करता था, ठीक है जी, बड़ा फेमस है उसका, एक वो स्कैंडल भी आया था लास्ट टाइम ना उसमें बिजनेस में। तो ये सब मेरी उससे भी, तो जो है आप जब आप किसी बेहतर साइड पे जाते हो ना, जब आप अल्लाह से मांगते हो कि यार मैं ये बात थोड़ी करना चाह रहा हूँ, सॉरी, तो क्योंकि मैं रिलेटेड हूँ माशाल्लाह, फरूख भाई मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हूँ कि, और
जब आप उनके साथ बैठते हैं और आप सोचते हैं कि यार आपने हलाल रिज़्क जो है वो हासिल करना है, मुझे यहाँ पे कोई कम्प्लेक्स फील नहीं कि हाँ भाई कोई बिलीनियर्स हैं मिलीनियर्स हैं, नहीं। मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह पाक ने जो मेरे मुकद्दर में रिज़्क लिखा था वो मुझे देखें, मैं पिंड में था जहाँ पे रिमोट एरिया, मैं आपको बताऊँ वहाँ पे 2030 के स्टार्ट में वहाँ पे ब्रॉडबैंड गया है, अभी गया है, ठीक है। तो मेरा अल्लाह पाक ने कैसे कॉन्ट्रैक्ट कराया, हो गया। तो ये कि मेरी सोच जो अच्छी, सबसे पहले मैं इंटरप्रेन्योरशिप और इंटरप्रेन्योर के लिए ये जो बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहले लाइक जैसे हमारे पाकिस्तान का स्लोगन है कि ईमान इत्तेहाद और तंजीम, तो हमें सबसे पहले इसको जो है फॉलो करना होगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम चाहे कोई भी बिजनेस करें, फार्मिंग में करें। और मैं इनवाइट यही करूंगा ऑल पीपल्स को कि आप यार फार्मर्स को भी देखो, रूरल पॉपुलेशन को भी देखो। हाँ, आप किसको एड्रेस कर रहे हो? 65 to 70% तो रूरल्स में है, और 10 to 15% है जो ऐसे वो उसमें आएगी नहीं कि हाँ भाई हम जंप स्टार्टअप में जाएं। आप किसको यार कर रहे हो? सिर्फ 10 to 20% को कर रहे हो। तो आप प्लीज़, मैं ये इनवाइट करूंगा कि आप आएँ, हमारा ये सिस्टम देखें, मेरा ही नहीं, दूसरे लोग जो है और फार्मर्स हैं जो बेचारे अभी भी इस उससे नहीं पहुंचे हैं, तो उन सब का ये सारा देखें कि हाँ भाई कैसे इसको जो है हम कर सकते हैं। यू नो, एग्रीकल्चर बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। तो अप टू 11% जो जीडीपी है वो जो है लाइफ स्टॉक दे रहा है पाकिस्तानी इकॉनमी को। हाँ जी, अब वो ये है कि अब कोई कुछ बने ही ना, IMF से लेना है तो फिर तो हम भी फार्मर भी ना कुछ कर सकते हैं। तो ये है बस। अच्छा, तो और एंड पे मैं जो है वो थैंक यू करना चाहूँगा कि अल्लाह पाक का सबसे पहले कि उसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि और मैं आपके सामने ये जो है स्पीच की, और उसके बाद जो है जो थैंक यू आप सब लोगों का, आपने मुझे सुना, मेरे ऑर्गेनाइज़र का स्पेशली फ़ारूक भाई और खुरम भाई का, और उसके बाद थैंक यू माय वेल विशर्स के विद योर प्रेयर्स आई एम हियर्स। अल्लाह। It was quite difficult for me. I was just about to cry. But because can you imagine the satisfaction you get? सोचें इस बारे में। और मैं एक और बात भी बताऊंगा। वो बात ये है कि मैंने बड़ा भगाने की कोशिश की इसको, बड़े कॉन्टैक्ट ये वो। सबसे पहला मैंने तुरप का पत्ता फेंक दिया उसी वक्त। वो तुरप का पत्ता क्या था? मुझे तुमने अगले 3 साल की फाइनेंशियल फोरकास्ट शीट बना के भेजनी है। नवी जमात के बच्चे को मैं ये कह रहा हूं, जो उसने 9 जमातें पढ़ी हुई हैं, उसको मैं कह रहा हूं यार फाइनेंशियल फोरकास्ट बना के भेजो। तो एक्सपेक्टिंग के यार भाग जाए। वो पुराने जमाने में वो नहीं होते थे, वो साजा होते थे, वो 3 महीने तक जूतियां ही सीधे कराते थे बच्चे से कि भाग जाए भाग जाए भाग जाए, बाद में फिर सिखाएंगे, जो बच जाएगा उसको सिखाएंगे। तो कई एक दिस मॉर्निंग देयर वर फ्यू एग्जांपल्स लाइक दैट। तो हम लोग आपको मेंटर्स ऐसे मिलेंगे जो आपको भगाएंगे कि यार जान छोड़े, कभी आपको लंबी कुछ दे देंगे, यार बिजनेस प्लान बना के ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, ये ले आओ। एंड में जो वो बच जाएगा ना, उसको सिखाएंगे। तो सीखने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, बहुत जूतियां सीधी करनी पड़ती हैं। और अगर आप समझते हो कि वो ब्रीड हो, आप इसी की मिसाल ले लेता हूँ फाइनेंशियल फोरकास्ट की। उसने क्या किया होगा? आई मीन यू हैव सीन हिम राइट? क्या किया होगा? गूगल पे गया होगा, देखा होगा फाइनेंशियल फोरकास्ट होती क्या है पहले तो, फिर वहां से देखा होगा अच्छा ये होती है कि यार आप ये बताते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। फिर कुछ नंबर किए होंगे उसमें से, यार इतनी बकरियां लूंगा, उन बकरियों की इतनी कीमत होगी रफली एवरेज, फिर उसको ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फुल शेख चिल्ली मॉडल। बट इन द एंड ही केम अप विद द फाइनेंशियल फोरकास्ट शीट, एंड व्हेन आई लुक्ड एट इट आई वाज gobsmacked, literally. I was like, wow, who is this guy? Or that's it. That's how this journey started. And self-satisfaction level from that point onwards. मैंने क्या किया? 50-50 था। मैंने उस मॉडल को ट्वीट किया। उसमें ये करेंगे। सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट इस वक्त चीज़ की है, और हम चीज़ मेकिंग के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहे। सारी चीज़ बाहर से आ रही है। So there are like opportunities, endless opportunities. And this is what it is. Another example I will give you, the Startup Magazine.
Startup magazine, Usman has been trying for last 1.5 years to launch a magazine which has something to do with the entrepreneurship, startup, whatever. One of the company, Discrete Logics, one of our partners, they gave him space. They gave him mentorship. They even designed it. Gave him every single thing. Actually, what happened was Farooq actually was giving a lecture, and look at the dedication. Farooq actually gave a lecture in, I don't know where, like Nust or somewhere else. Usman was there, the editor. And you can pick up the magazine. There's it's a discounted rate for 100 rupees each copy. Please support him. And this is the first magazine in Pakistan which has something to do with the entrepreneurship or the startup. And 6 months ago, what he said, he actually wrote it down. And then when Farooq said, Muhammad Farooq Mahmood, I was like, and he was like, when did I say that? And then he recalled that I said something like this 6 months ago in some lecture. But Usman actually noted it. And then he put that in this one after 6 months when he was about to launch. So there are endless examples. I'll give you another example. By the way, how many of you know Zishan Usmani? 1, 2, 3. Okay, not that many. Dr. Zishan Usmani. Okay, fine, yaar. हम भी कर लेते, मेरी PhD भी आधी ना रह जाती तो मैं भी डॉक्टर ही होता मालूम. Anyhow, it's not about the doctor bit, it's about the struggle bit. Okay? Every single one of you who are participating here today will go back with a book. And that book name is Justujoo Ka Safar. And if you read that book, as soon as you get home, I'll guarantee you 100%. When I read that book. So that's why every one of you, I've got the special permission from Zishan. I don't know how many of you have actually read that book. Can you tell me? Has anybody read Justujoo Ka Safar? Oh, one person. Wow. So you will have that book in a PDF format. It will be emailed to you once you go back, check your email, and then you'll have it. I recommend that reading that book. I was so inspired that I started going a bit further than that. And then we're going to be producing first ever Urdu audiobook. And that would be the book. And after the lunch, you'll have the opportunity to actually hear some of it. As you can see, there is a banner there for that. You will be able to actually hear about 5 minutes of that promo. That is how professionally it's been produced. Salim Gilani is actually sitting here. He has got the experience of about 20 years in FM broadcasting. He is actually producing this whole book. And you'll have the opportunity once it comes out that you'll be able to actually hear a book once you're driving a car. This would be a first-time phenomena in Pakistan, although you see Amazon bit. Now the issue is that we are running really late because we weren't sure about the Faisal Mushtaq that he's going to be coming or not coming. So lunch was supposed to be at 1 o'clock. I just want to say one point. This event has just made tears. Like, I was overwhelmed, the response we got. And the amazing part is that we didn't publish a single picture anywhere. Not on any standee, not on the website. Nobody knew who is coming. Yet you all came and you paid for it. You didn't come for free. You paid for it. This is amazing. I have never seen any startup cup or something like that to that extent, other than the obviously startups who are pitching, that have that much number. We were having a problem like last night actually. We weren't sure that how many people are going to come because we only told hotel there's going to be only 200. And then we realized that these people have actually paid. The guests are confirmed. They are RSVP'd. And then the number is going to go way beyond that. So we were just overwhelmed. And the second bit, we didn't put the rundown. Everybody was asking us, what's going to happen on the day? Who's going to speak? When? What time? What's going to be happening? But yet, this is something the next time is going to happen. You're not going to come for somebody.
And I don't want to name those people because those people names came up many times. People asked me, those startup asked me, is he coming? Is he coming? Or is she coming? I was like, I cannot confirm anybody. So you didn't come for the people, you came for the cause. All of you who are here. And that's the beauty about it. Next time if I won't be here, you will still come. If Jahara won't be here, you still come. If Wahaju Siraj won't be here, you still come. If Asad Umar, who's going to be speaking after the... he was so keen to actually attend this event somehow. I don't know why. But because of his... leader told him that he has to be in Karachi. And he couldn't just do. But we're going to do the video session with him right after the lunch. But he was so keen. But you wouldn't come here because of him or anybody else. And that's yours. This whole initiative is yours. You have to drive it. Nobody owns it. Although they call me CEO, but everybody owns it. And we're going to have a huge board of advisors, huge board of directors, but we're going to put a very, very strong foundation. Although we're going to build 1 or 2 stories on it right now, but that would hold many, many stories over it as soon as we have the ability to build more stories to it. Now, the point is, we have about 20 minutes. Sure. No. Thank you. Thank you. If you allow me, and I'm just going to ask you people, because we have one more session. If we do that, we'll be okay. Can you kind of patiently wait for another 25 minutes or so before lunch? You can? Hey! Okay, so inshallah we'll have the lunch at about 35 past. Okay, so it's roughly about 25 minutes, and then we'll go for lunch, and then we'll sort of like push Asad Umar maybe like 15-20 minutes further than that, and then from that point onwards we'll have the Asad Umar. We'll have 2 sessions of shepherd pie. Who knows about shepherd pie? Okay, shepherd pie is a Shark Tank, Dragon's Den, but this is the biggest secret of this whole event. Okay, and you'll get to know how this works, and then we're going to have another amazing session with very amazing people. So inshallah, see you in a bit, and those guys are coming.